موجودہ سولر صارفین کے لیے نیٹ میٹرنگ پالیسی برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ نیپرا نے سولر پالیسی میں ترمیمی مسودے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نیپرا نے ترمیمی مسودے کے نوٹیفیکیشن پر 30 روز میں آراء طلب کر لی۔ ترمیم کا اطلاق 9 فروری سے کیا جائے گا۔ نیپرا ترمیمی مسودے کا نوٹیفیکیشن۔ نیپرا نے گزشتہ ہفتے نیٹ میٹرنگ پالیسی ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ ملک میں نیٹ میٹرنگ کی بجائے نیٹ بلنگ کا نظام متعارف کرایا گیا تھا۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلے کہ موجودہ سولر صارفین کے لیے نیٹ میٹرنگ پالیسی برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ نیپرا نے سولر پالیسی میں ترمیم مسودے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نیپرا نے ترمیمی مسودے کے نوٹیفیکیشن پر 30 روز میں آراء طلب کر لی۔ ترمیم کا اطلاق 9 فروری سے کیا جائے گا۔ نیپرا ترمیمی مسودے کا نوٹیفیکیشن۔ نیپرا نے گزشتہ ہفتے نیٹ میٹرنگ پالیسی ختم کرنے کا نیٹ میٹرنگ کی بجائے نیٹ بلنگ کا نظام متعارف کرایا گیا تھا۔ فیصلہ آباد میں رمضان سہولت بازار لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ شہریوں کو 15% کمی کے ساتھ سستا سامان مہیا کیا جائے گا۔ آٹا، چینی، گھی، دالیں، سبزیاں اور پھل رعایتی نرخوں پر دستیاب ہیں۔ شہریوں نے سہولت بازار کے انتظامات کو تسلی بخش قرار دے دیا۔ شہریوں میں شہر میں مزید سہولت بازار قائم کرنے کی اپیل۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے کہ فیصلہ آباد میں رمضان سہولت بازار لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ شہریوں کو 15% کمی کے ساتھ سستا سامان مہیا کیا جائے گا۔ آٹا، چینی، گھی، دالیں، سبزیاں اور پھل رعایتی نرخوں پر دستیاب ہیں۔ شہریوں نے سہولت بازار کے انتظامات کو تسلی بخش قرار دیا۔ شہریوں میں شہر میں مزید سہولت بازار قائم کرنے کی اپیل۔ جنگ میں رمضان المبارک سے قبل گندم اور بائی پروڈکٹ کی قیمتوں میں کمی آنے لگی۔ گندم 4600 سے کم ہو کر 4250 روپے فی من مقرر۔ آٹے کے 10 کلو والے تھیلے میں بھی 100 روپے تک کمی۔ فلور مل سے 10 کلو آٹے کا تھیلا 910 کی بجائے 810 میں دستیاب ہوگا۔ تاجروں نے صورتحال کو خوش آئند قرار دے دیا۔ بولے کہ حکومتی اقدامات سے قیمتوں میں استحکام کی امید ہے۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ جنگ میں رمضان المبارک سے قبل گندم اور بائی پروڈکٹ کی قیمتوں میں کمی آنے لگی ہے۔ اسی حوالے سے جانتے ہیں اویس خان سے۔ جی بتائیے گا اویس۔ رمضان المبارک سے قبل جنگ میں گندم اور اس کے بائی پروڈکٹس کی قیمتوں میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جس سے شہریوں کو ریلیف ملنا شروع ہو چکا ہے۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق گندم کی قیمت 4600 روپے سے کم ہو کر 4250 روپے فی من تک آ گئی ہے۔ قیمتوں میں کمی کے اثرات آٹے پر بھی مرتب ہوئے ہیں۔ 10 کلو آٹے کا تھیلے کی قیمت میں 100 روپے تک کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ فلور مل سے 10 کلو آٹے کا تھیلا جو پہلے 210 روپے میں فراہم کیا جا رہا تھا، اب 810 روپے میں دستیاب ہے۔ اسی طرح چوکر کی قیمتوں میں بھی بڑی کمی آئی ہے، جس کا ریٹ 2700 روپے سے کم ہو کر 2300 روپے فی من تک آ گئے ہیں۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ مارکیٹ میں گندم کے سٹاکس کی صورتحال بہتر ہوئی ہے، جبکہ حکومتی اقدامات کو بھی خوشائند قرار دیا جا رہا ہے، جس سے قیمتوں میں استحکام کی امید ہے۔ گورنمنٹ نے جو گندم کی سپلائی شروع کی ہے گورنمنٹ کے سرکاری گوداموں سے، اس سے جو ہے کافی نمایاں فرق آیا ہے، جو کہ غربا کے لیے خوشائند ہے۔ ہم حکومت پاکستان سے، حکومت پنجاب سے اپیل کریں گے کہ جیسے گندم کا ریٹ کم ہوا ہے، جو کہ اب ریٹ مارکیٹ میں 4041 روپے ریٹ چل رہا ہے، اور آٹے کا ریٹ جو فلور ملیں سیل کر رہی ہے وہ 800 روپے ہے، اور مارکیٹ میں 905 روپے سیل ہو رہا ہے 10 کلو تھیلے کا۔ تو یہ بہت خوشائند ہے، غربا کے لیے بہت، جو مزدور طبقہ ہے ان کے لیے بہت یہ فائدہ مند ہوگا۔ تاجروں اور صارفین نے مطالبہ کیا ہے کہ دیگر اشیاء فروشنوش کی قیمتوں پر بھی قابو پایا جائے تاکہ رمضان میں ریلیف مل سکے۔ کیمرامین نظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 چھنگ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ماہ رمضان کی آمد ٹوبہ ٹیکسنگ میں 10 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 50 روپے کم کر دی گئی ہے۔ رمضان کے دوران چینی 140 روپے کلو میں دستیاب ہوگی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 900 کی بجائے 850 روپے کا ہوگا۔ رمضان کے دوران چینی 140 روپے کلو میں دستیاب ہوگی۔ اس حوالے سے ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر جنرل ذیشان لبھا مسیح کا کہنا تھا، چینی 1 اور 2 کلو کی پیکنگ میں دستیاب ہوگی۔ چینی کا کاؤنٹر سہولت بازار میں لگایا جائے گا۔ عوام کو رمضان المبارک میں ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ اشیاء فروشنوش کی قیمتوں پر کنٹرول کرنے کے لیے پرائس کنٹرول کی ٹیمیں فیلڈ میں موجود ہیں۔ عید سیزن قریب آتے ہی منافع خور متحرک شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کی تیاریاں شروع۔ چند روز قبل وافر ملنے والا دھاگا اچانک نایاب۔ ایمبرائڈری سیکٹر کا مصنوعی قلت پر اظہار تشویش۔ ارباب اختیار سے دستیابی یقینی بنانے اور قیمتیں کنٹرول کرنے کا مطالبہ۔ تفصیلات علی نارو کی رپورٹ میں۔
सीजन करीब आया तो मुनाफा खोरों ने कमर कस ली। कुछ दिन कबल वाफिर मकदार में मौजूद धागा अचानक से नायाब हो गया। एम्ब्रॉयडरी सेक्टर का बुनियादी खाम माल धागे की मसनूई किल्लत पर इजहार तशवीश। सदर राना अब्दुल गफूर का कहना था कि धागे की शॉर्टेज कसदन की गई है ताकि महंगे दामों फरोख्त किया जा सके। देखिए, हमारा पीक आवर्स चल रहे हैं, सीजन चल रहा है, ईद के दिन है, शूटिंग का सीजन चल रहा है, लेकिन इन्होंने वो धागे के रेट जो है वो बढ़ाने शुरू कर दिया। और मसनूई किल्लत, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी सिर्फ फूड आइटम में नहीं होती, हमारे रॉ मटेरियल में भी ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है। एक दिन में 60 सिंगल का 6 से 7 हज़ार रुपये बोरे का बढ़ा दिया, जिससे हमने आगे पार्टियों को रेट दिए होते हैं, अपना जितना भी उसका निकाल के रेट दिए होते हैं, अब हम उसको किस में डालें। एम्ब्रॉयडरी सेक्टर ने मुतालबा किया है कि धागों की कीमत यकीनी बनाने के साथ साथ कीमतें भी कम की जाएं। कैमरामैन ईमान अली के साथ अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं कि रमजान मुबारक की आमद के साथ ही कपड़े की मांग में इजाफा होने लगा। सूतर मंडी के बाद ग्रे क्लॉथ मार्केट में भी तेजी का रुझान। ताजिर कहते हैं कि मौसम गर्मा के सीजन और रमजान मुबारक की वजह से डिमांड बढ़ चुकी है, इसी के साथ कीमतें भी बढ़ रही हैं। तफसीलात फैसलाबाद से फजील अहमद की रिपोर्ट में। सूतर मंडी के बाद ग्रे क्लॉथ मार्केट में भी तेजी रिकॉर्ड की जाने लगी। ग्रे क्लॉथ मार्केट में कपड़े की कीमत में इजाफा। सूतर मंडी में कॉटन यान, वेस्कोस यान और दीगर वैरायटी की कीमतों में इजाफा होने के बाद ग्रे क्लॉथ मार्केट में कीमतें बढ़ने लगी। ताजरों का कहना था कि कॉटन, लट्ठा और वेस्कास की मांग बढ़ने से कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। रमजान मुबारक की आमद की वजह से मांग बढ़ रही है, मार्केट में तेजी आ चुकी है, कारोबार भी बेहतर हो रहे हैं। अब कॉटन यान की किल्लत पैदा हो रही है, इसी वजह से कॉटन ज्यादा महंगी हो रही है। रमजान की वजह से रश काफी निकलना शुरू हो गया, इस वजह से माल शार्ट हो गया। ढाका काटन में बहुत तेजी आई, आपके सामने 80 सिंगल और 52 सिंगल जो है इस ढाके में काफी शॉर्ट है, ढाका भी शॉर्ट है, उस वजह से रेट काफी तेज हो गए। ईद के साथ साथ गर्मियों के सीजन की वजह से मार्केटों में रौनकें बहाल होने लगी, जबकि कपड़े के साथ यान और ग्रे क्लॉथ की मांग भी बढ़ रही है। कैमरामैन राना दरीस के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। रमजान मुबारक में स्कूलों के लिए नए औकात कार जारी। स्कूल सुबह 8:30 बजे लगा करेंगे, छुट्टी दोपहर 1 बजे हुआ करेगी। जुम्मे के रोज छुट्टी दोपहर 12:30 बजे हुआ करेगी। रमजान मुबारक के 30 रोज असातिज़ा को भी हफ्ते की छुट्टी हुआ करेगी। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि रमजान मुबारक में स्कूलों के लिए नए औकात कार जारी। स्कूल सुबह 8:30 बजे लगा करेंगे, छुट्टी दोपहर 1 बजे हुआ करेगी। जुम्मे के रोज छुट्टी दोपहर 12:30 बजे हुआ करेगी। रमजान मुबारक के 30 रोज असातिज़ा को भी हफ्ते की छुट्टी हुआ करेगी। रमजान मुबारक में स्कूलों के लिए नए औकात कार जारी। स्कूल सुबह 8:30 बजे लगा करेंगे, छुट्टी दोपहर 1 बजे हुआ करेगी। जुम्मे के रोज छुट्टी दोपहर 12:30 बजे हुआ करेगी। रमजान मुबारक के 30 रोज असातिज़ा को भी हफ्ते की छुट्टी हुआ करेगी। खबर का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि हुकूमत ने महंगाई की आग पर पेट्रोल छिड़क दिया। इससे कबल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर फैसलाबाद डिवीजन के शहरी बरहम ट्रांसपोर्टर्स भी बिल बिला उठे। कहते हैं महंगाई के तूफान में हुकूमत ने पेट्रोल बम भी चला दिया। सब्जियां, फल और गोश्त समेत हर शय महंगी, काश्तकार भी शदीद मुतासिर होंगे। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ाने का इंदिया दे दिया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। रमजान मुबारक से कबल महंगाई का बड़ा झटका। पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर महंगा, नई कीमत 258 रुपए 17 पैसे मुकर्रर की गई है। डीजल 7 रुपए 32 पैसे इजाफे से 275 रुपए 70 पैसे पर पहुंच गया। नई कीमतों का इतलाक 15 रोज के लिए होगा। फैसलाबाद के अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान आएगा। ये पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। कल को ये अपना इस बेस पे वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी। आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में बजाय इसके कि रमज़ान में मुसलमानों को कोई रिलीफ मिले, मुसलमानों की रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं वो कम सस्ती हों। हम यही कहेंगे कि पेट्रोल सस्ता करें। हम स्कूल से आना होता है, हमारे पास इतने अखराजात नहीं होते कि हम पेट्रोल डलवा सकें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर चिन्योट में शहरियों के साथ ट्रांसपोर्टर्स भी बिल बिला उठे। बोले पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से रमजान मुबारक में मुतादिद अशिया की कीमतों में इजाफा होगा। महंगाई के दौर में मजीद इजाफा हैरान कुन है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिलफौर कमी करे, बसूरत किरायों में भी इजाफा करना पड़ेगा। हम तो ये वज़ीर आला से ये मुतालबा करते हैं कि खुदा के वास्ते ऊपर से रमज़ान आ रहा है, अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो तमाम चीज़ों में इजाफा होगा। जो गरीब आदमी है
जो मजदूर तबका आदमी है वो तो मर के रह जाएगा बेचारा। टोबा टेक सिंह के शहरी भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत से नाला। उनका कहना था कि पहले ही महंगाई अरूज पर है, अब पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया गया है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करे तो महंगाई में कमी होगी। शहरी बोले कि महंगाई के तूफान में अब हुकूमत ने पेट्रोल बम भी चला दिया है। डीजल की कीमत बढ़ने से काश्तकार भी शदीद मुतासिर होंगे। अपनी तरफों देखो इकट्ठे अपने रेट पर ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ 5 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਧਾਤੇ 1 ਲੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ 7 ਰੁਪਏ ਵਧਾਤੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਆ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਸਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। भवाना के शहरियों का भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर इजहार तशवीश। बोले हुकूमत ने महंगाई बेरोजगारी में पिसे अवाम पर पेट्रोल बम चला दिया। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से महंगाई मजीद बढ़ेगी। डीजल की कीमत बढ़ने से काश्तकारों को भी शदीद नुकसान पहुंचेगा। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फिलफौर वापस ले। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर तशवीश का इजहार। हुकूमत की जानिब से डीजल की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट मालिकान ने किराए 3 से 5% तक बढ़ा दिए। मुतासिरीन ने जालिमाना इक़दाम पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। बोले कारोबार पहले ही ठप हो चुका है, अब डीजल की कीमत में इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में पेट्रोल 5 रुपए, हाई स्पीड डीजल 7 रुपए 32 पैसे लीटर महंगा। पेट्रोल मसनूआत की कीमत में इजाफे पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किराया में 3% इजाफे का ऐलान। फैसलाबाद से जंग का किराया 14,000 से बढ़कर 14,400 हो गया। फैसलाबाद से लाहौर का किराया 20,000 से बढ़कर 20,600 कर दिया गया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि डीजल की कीमत में हर माह इजाफे के बाद किराया बढ़ाना मजबूरी है। डीजल और गाड़ियों के पार्ट्स सस्ते हों तो किराया कम हो सकेगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स ने जालिमाना इक़दाम पर हुकूमत वक्त को आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि रमजानुल मुबारक से कबल महंगाई का तूफान आने को है। ट्रांसपोर्टर्स ने 5% किराए में इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा कर दिया है, पहले भी किया था तो ट्रांसपोर्टरों ने उस वक्त किराए नहीं बढ़ाए थे, अब फिर कर दिया है। ये मजबूरी है कि सिर्फ किराए नहीं बढ़ते, इसके साथ दो जो बाकी आइटमें हैं जिनसियात है उनमें भी इजाफा हो जाता है। हर चीज़ बढ़ जाती है, टायरों की कीमतें बढ़ जाती हैं, स्पेयर पार्ट्स की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो हमने भी एसोसिएशन की तरफ से 5% किरायों में इजाफा किया गया है। जंग में भी गुड्स ट्रांसपोर्ट्स ने किरायों में 3% इजाफा कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि कारोबार पहले ही ठप हो चुका है, अब डीजल की कीमतों में इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। शहरी किरायों में इजाफे पर नाराज हैं, जबकि इस सूरत हाल में उनका कोई कसूर नहीं। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिलफौर कमी करे। आगे बढ़कर आपको बताएं कि लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में तरमीम। अब ज़बानी इंतकाल का इंदराज नहीं हो सकेगा। नए कानून के तहत विरासत और रहन के अलावा ज़बानी इंतकालात पर पाबंदी आयद। इंतकाल पर कब्जे का इंदराज लाजमी करार दे दिया गया। तकसीम के फैसले भी 6 माह की बजाय सिर्फ 2 माह में किए जाएंगे। रेवेन्यू ऑफिसर अगर 60 यौम में फैसला नहीं करता तो केस असिस्टेंट कमिश्नर को मुंतकिल हो जाएगा। तफसीलात फैसला अब्बास से अब्दुल रहमान की रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत ने लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में तरमीम का बिल मंजूर करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में अहम तरमीम कर दी गई। अब जुबानी इंतकाल का इंदराज नहीं होगा। नए कानून के तहत विरासत और रहन के अलावा जुबानी इंतकालात पर पाबंदी होगी। जमीन के लेन देन के मामला अब सिर्फ रजिस्टर्ड दस्तावेजात से ही मुकम्मल होंगे। इंतकाल पर कब्जा का इंदराज लाजमी होगा। जमीन सिर्फ कागज का टुकड़ा ही नहीं बल्कि मलकियत के साथ साथ यकीनी कब्जा भी लाजमी होगा। रेवेन्यू कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम मुतारफ करवा दिया गया। केसेस की समाअत अब कागजी फाइलों की बजाय इलेक्ट्रॉनिक तरीके पर होगी। साइलिन घर बैठे अपनी समाअत की तफसीलात देख सकेंगे। तकसीम के मुकदमात की मुद्दत में कमी कर दी गई। तकसीम के मुकदमात के फैसले की मुद्दत 180 दिन से कम करके 60 दिन कर दी गई। अगर रेवेन्यू ऑफिसर 60 दिन में फैसला नहीं कर पाता तो केस असिस्टेंट कमिश्नर को मुंतकिल हो जाएगा। अपील और निगरानी दायर करने की मुद्दत मुकर्रर। अपील दायर करने की मुद्दत 30 दिन मुकर्रर की गई है। फैसला भी 30 दिन के अंदर किया जाएगा। मुकदमात में ताखीर का खात्मा हो सकेगा। बुरी अहकामात के खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकेगी। कैमरामैन मलिक इरफान के साथ अब्दुल रहमान, फैसलाबाद। फैसलाबाद में आतिशबाजी और हादसात की रोकथाम के लिए बड़ा इक़दाम। जिला भर में नए फायर हाइड्रेंट लगाने का असूली फैसला। घंटा घर के इतराफ 8 बाजारों समेत 118 मकामात पर फायर हाइड्रेंट्स नस्ब किए जाएंगे। कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर कहते हैं कि रेस्क्यू हुकाम की जानिब से मकामात की निशानदही कर दी गई है। किसी भी हंगामी सूरत हाल के दौरान पानी फौरी दस्तयाब होगा। तफसीलात वकास बे की रिपोर्ट में।
फैसलाबाद में हादसात की रोकथाम और आग लगने जैसे वाकयात पर फौरी कंट्रोल के लिए इकदाम शुरू। कमिश्नर आदत जहांगीर अनवर का कहना था कि जिला भर में 118 मुकामात पर फायर हाइड्रेंट लगाने की तैयारी कर ली गई है। 8 बाजारों में वासा की वाटर सप्लाई लाइन पर फायर हाइड्रेंट लगाए जाएंगे। राजा जहांगीर अनवर का मजीद कहना था कि रेस्क्यू काम की जानिब से 118 मुकामात की निशानदेही की गई है। तहसील जुमरा, जड़ावाला, तांदलेवाला और समुद्री में भी फायर हाइड्रेंट की तंसीब की जाएगी। फायर हाइड्रेंट बनाए जाने से आग लगने पर दूर दराज से पानी नहीं मंगवाना पड़ेगा। कमिश्नर फैसलाबाद का कहना था कि फायर हाइड्रेंट फंक्शनल होने पर किसी भी हंगामी सूरत हाल में करीब तरीन मुकाम पर पानी दस्तयाब होगा। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ वकास बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि कैडेट कोहली जंग ने नई तारीख रकम कर डाली। जिले तारीख में पहली बार गर्ल्स मैराथन रेस का इनेकाद बॉयज कैडेट्स ने 7 जबकि गर्ल्स ने 5 किलोमीटर तवील फासला इंतहाई जोश और जज्बे के साथ तय किया। कैडेट्स ने बेहतरीन जिस्मानी फिटनेस का मुजाहरा किया, नज़्म ज़ब्त और टीम स्पिरिट की भी आला मिसाल कायम की। कमांडेंट मुगीरा बिन सुहेब का कहना था कि तालिबात ने साबित किया कि वो किसी भी मैदान में मर्दों से पीछे नहीं। तफसीलात वसीम अजीज की रिपोर्ट में। कैडेट कोहली जंग में फिटनेस, नज़्म-ओ-ज़ब्त और हौसले की एक शानदार मिसाल देखने को मिली, जहां तारीखी मैराथन रेस का इनेकाद किया गया। इवेंट में बॉयज कैडेट्स के लिए 7 जबकि गर्ल्स कैडेट्स के लिए 5 किलोमीटर तवील मैराथन मुनक्किद की गई, जिसमें 60 बॉयज और 40 गर्ल्स कैडेट्स ने भरपूर जोश और जज्बे के साथ हिस्सा लिया। मुझे इधर आके पता चला कि मैं और पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, लाइक जैसे कि तिलावत हो गई, नात हो गई और को करिकुलर और स्पोर्ट्स में भी मैं बहुत ज़्यादा पहले डाउन हुआ करती, लेजी हुआ करती थी, लेकिन इधर आने के बाद मैं एक्टिव हो गई। मैं 5वें नंबर पे आई हूँ मैराथन रेस में और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कमांडेंट का, मुगीरा बिन सुहेब का, कि जिन्होंने हमारे लिए हमारे स्टेमिना को चेक करने के लिए इस तरह की रेस वगैरह रखवाई। कैडेट्स ने न सिर्फ बेहतरीन जिस्मानी फिटनेस का मुजाहिरा किया बल्कि नज़्म-ओ-ज़ब्त और टीम स्पिरिट्स की आला मिसाल भी कायम की। रेस के दौरान कैडेट्स का जज्बा, अज़्म और हौसला दीदनी था। रेस के शुरा ने भरपूर अंदाज में मुकर्ररा फासला मुकम्मल किया। हमारे कॉलेज का मकसद सिर्फ तालीम देना नहीं बल्कि डिसिप्लिन और लीडरशिप स्किल्स भी सिखाना है। ये हमें एकेडमिक्स के अलावा स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा आगे करता है। मैंने कैडेट कॉलेज में जो सीखा मैंने वो कहीं नहीं सीखा अपनी लाइफ में। जितनी चीज़ें मैंने अपने इस 1 साल में सीखी उतनी मैंने अपने लास्ट 15 ईयर्स में भी नहीं सीखी होंगी। मुझे बहुत फख्र है कि मैं कैडेट कॉलेज जंग की तालिब इल्म हूँ, क्योंकि कैडेट कॉलेज जंग को करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ हमारी स्टडीज़ पे भी बहुत फोकस करता है और दोनों चीज़ों को बैलेंस करके रखता है। कमांडेंट मुगीरा बिन सुहेब का कहना था कि उन्हें अपने कैडेट्स की कारकर्दगी पर फख्र है। खासतौर पर गर्ल्स कैडेट्स ने तवील फासले की मैराथन में हिस्सा लेकर एक नई रिवायत कायम की है। तालिबात ने साबित किया है कि वो किसी भी मैदान में मर्दों से पीछे नहीं। कमांडेंट का मजीद कहना था कि पहली बार किसी कैडेट इदारे में बाकायदा तवील फासले की गर्ल्स मैराथन का इनेकाद किया गया, जिसने इदारे की तालीमी और हम निसाबी तारीख में एक मुनफरिद संगे मील हासिल किया है। गर्ल्स स्टूडेंट्स का मैराथन शुरू किया है। ये 5 किलोमीटर्स लॉन्ग रेस थी और इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 8 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच हाउस, सो टोटल 32 स्टूडेंट्स, 4 हाउसेज हैं हमारे, सो 32 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह ऑल 32 ऑफ देम हैव फिनिश्ड द क्रॉस लाइन, तो वो उन्होंने ये रेस मुकम्मल की। मैराथन के दौरान कैडेट्स की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए रेस्क्यू 1112 की जानिब से मुकम्मल मेडिकल कवर फराहम किया गया। यहाँ भी इवेंट्स ने न सिर्फ कैडेट्स की जिस्मानी सलाहियतों को उजागर किया बल्कि इस बात का भी सबूत दिया कि तालीमी इदारे तलबा की हमाजहत शख्सियत साजी में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। ऑफिसर्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस जंग में माओ के दिन की रंगारंग तकरीब, तलबा की 1000 से ज़ायद माओ की शिरकत। तकरीब माँ का किरदार उजागर करने और नई नस्ल में एहतराम वालिदैन का शऊर बेदार करने के लिए सजाई गई। तफसीलात उवैस खान की रिपोर्ट में। जंग में ऑफिसर्स ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस के ज़ेर तमाम माओं के खसूसी दिन मनाने के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें 1000 से ज़ायद तलबा की माओं ने शिरकत की। तकरीब का मकसद माँ के अजीम किरदार को उजागर करना और नई नस्ल में एहतराम वालिदैन का शऊर बेदार करना था। तलबा ने अपनी माओं को खिराज तहसीन पेश करते हुए खूबसूरत टेबलोज, तकरीर और मिली नगमे पेश किए। तकरीब की मेजबानी सीईओ ऑफिसर्स ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस नवीद इकबाल और मोहम्मद नवाज ने की। इस मौके पर सीईओ कैडेट कॉलेज टोबा रोड मुगीरा बिन सुहेब, प्रोफेसर शेख जफर, प्रोफेसर जफर दोका, आतिफ चौधरी और जनरल सेक्रेटरी चैम्बर ऑफ एजुकेशन इरफानी अली समेत दीगर तालीमी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में मिली नगमों के जरिए फौज पाकिस्तान की कुर्बानियों और किरदार को भी खिराज तहसीन पेश किया गया, जिस पर हाजरीन ने भरपूर दाद दी। रुकान ने तलबा की परफॉर्मेंस को सराहते हुए उसे यादगार और मुतासिर कुन तकरीब करार दिया। कैमरामैन नजीम अहमद के साथ उवैस खान, सिटी 41 जंग।
दूसरी जानिब आपको बताएं कि नेचुरल्स क्लब फैसलाबाद की जानिब से वंस अपॉन अ टाइम के नाम से फैमिली गाला शहरियों की बड़ी तादाद फैमिलीज के हमरा खरीदारी करने और लुत्फ अंदोज होने पहुंच गई। शुरका ने मुख्तलिफ इकसाम के खानों के साथ झूले भी झूले। तफसीलात उमर रांझा की रिपोर्ट में। नेचुरल्स क्लब फैसलाबाद की जानिब से वंस अपॉन अ टाइम के नाम से फैमिली गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद फैमिलीज के हमरा शरीक हुई। फैमिली गाला के दौरान शुरका मुख्तलिफ इकसाम के खानों से महजूज हुए। इस दौरान झूले भी झूले। शहरियों का कहना था कि कारोबारी और दीगर परेशानियों से छुटकारे के लिए ऐसी तकरीबात का होना इंतहाई जरूरी है। मजीद बोले कि फैसलाबाद की अवाम के लिए बेहतरीन तफरीह का मौका है, जिससे भरपूर फायदा उठाना चाहिए। बहुत अच्छा, लोगों के लिए बहुत रिफ्रेशमेंट है, माइंड रिफ्रेशमेंट हो रही है। और दूसरा यहाँ लोग जो टेंस है ना, जो मुल्क के हालात हैं इस टाइम, कारोबारी हालात हैं, उसके लिए ये ऐसी चीजें ना फैसलाबाद में जरूरी है। फैमिली गाला में खाने पीने के साथ दीगर स्टॉल्स भी लगाए गए, जिसमें ना सिर्फ तफरीह के साथ साथ शहरी खरीदारी भी कर सकते हैं। स्टॉल्स मालकान का कहना था कि नेचुरल्स क्लब ने ये मेला सजाया है, जिसका फायदा उठाते हुए हमने स्टॉल्स लगाए हैं। जबकि तफरीह के लिए आए शहरियों का नेचुरल क्लब के इस इकदाम को सराहते हुए कहना था कि यहाँ पर लोग तफरीह के लिए आ रहे हैं। मुख्तलिफ ब्रांड्स की जानिब से फैमिली गाला में स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, जहाँ से तफरीह और खरीदारी एक साथ कर सकते हैं। फैसलाबाद में एक बड़ा अच्छा इवेंट हो रहा है वंस अपॉन अ टाइम के अम्ब्रेला में, तो यहाँ पे काफी सारे ब्रांड्स अपने अपने एग्जीबिशंस कर रहे थे। तो इसके अलावा बच्चे आ रहे हैं, फैमिलीज आ रही हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मैं नेचुरल रिजॉर्ट में आई हूँ। वंस अपॉन अ टाइम के नाम से यहाँ पे इन्होंने एक एग्जीबिशन स्टॉल बुक वगैरह किए थे और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फैसलाबाद के लिए। तकरीब में आए शहरियों से नेचुरल्स क्लब के इस इकदाम को सराहते हुए गवर्नमेंट से मजीद ऐसी तकरीबात कराने का मुतालबा भी किया है। कैमरा टीम के साथ उमर रांझा, सिटी 41 फैसलाबाद।